Good morning, dear students. As we are going through the chapter the French Revolution. In the previous video we had discussed about the Jacobin rule and the period of terror. Today we will discuss about the directory rule and the role of women and philosophers in the French Revolution. So let's start. After the fall of Jacobin government, I have already told you in the previous video, and the fall of Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power. अब जेकोबिन की गवर्नमेंट को रिव्यू जिन्होंने किया वो कौन से लोग थे? मिडिल क्लास के रिच पीपल लोग थे। जब इन्होंने देखा कि जेकोबिन की गवर्नमेंट, रॉब्सपियर की गवर्नमेंट नॉट डूइंग द राइट वे, सो दे रिमूव देम एंड गेट ऑल द कंट्रोल इन हिज हैंड. आफ्टर दैट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, सम चेंजेस वी आर done in the previous constitution and a new laws were applied. By this new constitution denied the vote to non-property section of the society, means the people who have not the property, not paid the taxes, they were not allowed to give the vote. And after that this new system introduced and appointed a directory, an executive made up of 5 members. डायरेक्टरी का मतलब 5 मेंबर्स की एक कमेटी, 5 मेंबर्स. इससे क्या होता था? कभी भी पावर किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं रहती थी. द कमेटी इज मेड बाय द 5 मेंबर्स. सो फॉर टेकिंग द एनी डिसीजन द मेजॉरिटी प्रूव्स दैट व्हिच डिसीजन विल बी इम्प्लीमेंट. जिसकी तरफ मेजॉरिटी रहेगी, अगर 3 लोगों ने कहा कि नहीं ये डिसीजन लागू होगा, इन दिस सिचुएशन that decision will be implemented. ऐसा क्यों किया गया? Can you guess? Very simple. Because in the previous government, when all the power in one hand, in the hands of Robespierre, he introduced the hard and strict policies. So here, by this directory rule, this system was introduced that power cannot become in one hand. ये सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि फिर से सारी पावर किसी एक आदमी के हाथ में ना आ सके, इसीलिए 5 मेंबर्स की कमेटी इंट्रोड्यूस की गई. दिस न्यू गवर्नमेंट, द डायरेक्टरी रूल, वी आर नॉट वेरी इफेक्टिव बिकॉज समटाइम्स आफ्टर द 5 मेंबर्स द डायरेक्टरी देयर इज आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. डायरेक्टरी जो 5 मेंबर्स की कमेटी थी, इसके बाद जो नीचे लेजिस्लेटिव बॉडी थी जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे. अब समटाइम्स देयर वी आर द क्लैशेस बिटवीन द लेजिस्लेटिव बॉडीज, रिप्रेजेंटेटिव एंड द डायरेक्टरी. किसी भी डिसीजंस को लेकर के देयर इज ए क्लैशेस ऑलवेज. कोई डिसीजन असेंबली से पास होकर के आया बट दिस इज नॉट पास बाय द डायरेक्टरी. समटाइम्स द डायरेक्टरी, इन डायरेक्टरी दीज मेंबर्स आर आल्सो नॉट सेटिस्फाइड एंड कम ऑन एनी डिसीजन. कई बार ऐसा होता था कि डिसीजन लेजिस्लेटिव जो बॉडी थी वहाँ से पास होकर के तो आता, लेकिन वो डायरेक्टर्स को जो है समझ में नहीं आता था. इस वजह से लेकर के देयर वी आर ऑलवेज द क्लैशेस बिटवीन द डायरेक्टरी एंड द अदर मेंबर्स. सो दिस गवर्नमेंट वी आर नॉट ए वेरी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड यू कैन से दैट स्टेबल गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट भी डायरेक्टरी रूल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था. एंड दिस अनइफेक्टिवनेस of the directory rule paved the way for the rise of Napoleon. ये अनइफेक्टिव सरकार ने एक तरह से नेपोलियन के लिए जो है एक रास्ता बना दिया, जिससे आगे चलकर नेपोलियन became the ruler and the military dictator of the France. अब अगर हम बात करें रोल ऑफ फिलोसफर्स, you know very well there are so many philosophers in the France. Among them the Voltaire, Rousseau, Montesquieu and Diderot. These are the famous philosophers of France, and these philosophers
play the important role in French Revolution because these philosophers oppose the previous system, means the divine theory of kingship. Oppose the divine theory of kingship. इससे पहले क्या सिस्टम था? The king is like a god. All the decision of king is the decision of God. These philosophers oppose this. According to them, here the king is not a god. He is just like a human being like us. हमारी तरह वो भी एक जो है सिंपल ह्यूमन बींग्स है, कोई गॉड नहीं. इसके अलावा these philosophers talked about the equality, about the rights. They also oppose the absolute power in one hand. Absolute power in one hand. पहले क्या था इससे पहले कि all the power in the hands of king. But these philosophers totally oppose them. According to them, the power should be divided. इनके हिसाब से क्या था कि पावर किसी एक पर्सन के हाथ में ना होकर के पावर को डिवाइड होना चाहिए. पावर शुड बी डिवाइडेड. एंड दे आल्सो सजेस्टेड द आइडिया ऑफ डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड आल्सो द जुडिशरी. तो इस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया आइडिया कि पावर जो है डिवाइड होना चाहिए. अमंग देम द वोल्टेयर attacked the Catholic Church system. He believed that man's destiny was in his own hands, not in heaven. Means human beings की जो डेस्टिनी है, जो उसका फ्यूचर है, वो उसके हाथ में होता है, ना कि हेवन में. इसके अलावा जॉन लॉक he propounded the ideas refuting the divinity and absolute rights of monarch. मोनार्क का जो एब्सोल्यूट राइट और डिवाइन थ्योरी थी उसका अपोज उसने किया. मॉन्टेस्क्यू he presented the idea of डिवीजन ऑफ पावर. पावर को जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने का आइडिया मॉन्टेस्क्यू ने प्रेजेंट किया. ही बिलीव दैट ऑल पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन हैंड. अगर सारी पावर किसी भी एक आदमी के हाथ में आ जाएगी तो वो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नहीं रहेगी. In that situation, it will be the dictatorship or the monarch. And in this situation, the people, the citizen, cannot get the equal rights. So these ideas of philosophers were direct attack on the privilege system and the feudal rights, whose only beneficial for the upper classes. चाहे वो प्रिविलेज सिस्टम रहा हो, फ्यूडल राइट सिस्टम रहा हो, इससे केवल और केवल those people, the upper classes people got the all facilities, all the profits. There is nothing for the common people. So these philosophers totally oppose them. And these philosophers inspired the people through their books, through their writings, inspired, motivated to the people for rights, for equality and for power division. These philosophers, this is, you have to write the name of the books of these philosophers, right? अब अगर हम बात करें in this revolt, in this French Revolution, there was any role of women or not? Women's का कोई रोल था या नहीं था? The women also played an important role in the French Revolution. Before the 1791 Constitution, women have not equality, not voting rights, they are not allowed for education, right? But by the new Constitution of 1791, the women got so many rights. उनको एजुकेशन का अधिकार मिला. They got the right to select their life partner. They also got the right to divorce, right? They also got the right to come outside for work. बाहर जाकर के उनको वर्क करने का राइट्स दिया गया. So the women trained for jobs, become artists or run a small business. These rights they got by the new Constitution of 1791. But they did not got the voting rights. इन सब के राइट्स के साथ साथ ऐसा नहीं था कि उनको वोटिंग राइट दिया गया, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया. अब जब पीरियड ऑफ टेरर रॉबस्पियरे की गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट में रॉबस्पियरे ने जो वुमेन्स के पॉलिटिकल क्लब थे और एक्टिविटीज़ थी उनको क्लोज करा दिया. क्लोजर ऑफ वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स एंड एक्टिविटीज़. बट देयर मूवमेंट्स, द वुमेन्स मूवमेंट फॉर देयर वोटिंग राइट्स, फॉर देयर इक्वलिटी, फॉर इक्वल राइट्स, वी आर कंटिन्यू रनिंग नेक्स्ट 200 ईयर्स. 1789 से जो उनका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो अगले जो है
200 साल तक चलता रहा। एट लास्ट द फ्रेंच वुमेन गॉट द वोटिंग राइट्स इन 1946। These political activities of French women kept alive as inspiring memory। इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, जो कंटिन्यू स्ट्रगल करती रही, वो ये शो करता है कि हाँ, अपने राइट्स के लिए कंटिन्यू फाइट करते रहने पे एट लास्ट उनको रिजल्ट मिला इन 1946 में। वुमेन्स गॉट द वोटिंग राइट्स। ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन, जब रिवोल्ट हो रहा था, आपको याद होगी घटना, व्हेन द फर्स्ट ऑन 14 जुलाई 1789 जो स्टार्ट हुआ था, वो भी वुमेन्स आर इन द रो फॉर द ब्रेड। वुमेन्स की लाइन में थी जो ब्रेड के लिए पहले प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया था। इसके साथ साथ ड्यूरिंग द वार टाइम द वुमेन्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल। दे टेक केयर ऑफ फैमिली। सम वुमेन्स वर्क एज द सेमिस्ट्रेस, कम देयर हाउसेज, वर्क एज द हाउसमेड टू अर्न द मनी। इस तरह से वुमेन्स ने कंटिन्यू जो है रिवोल्ट में, प्रोटेस्ट में साथ दिया मेंस का। अमॉन्ग देम वन प्रोमिनेंट वुमेन, काफ़ी फेमस वुमेन फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान, ओलंपिया डी गॉजेज। She was also arrested and executed. She wrote a very famous book, Declaration of Rights of Women and Citizens. Women and Citizens. In this book, she raised the issues of women rights and she talked. Thank you. Have a nice day.